ماشاء اللہ، شکراً، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے جامعہ دارالبر نولکا پیٹ کے ایک ہونہار طالب علم سید عبدالبر بن سید عبدالجعفر، جو اس ملک میں آزادی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ملک ہندوستان سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، اور یہ حقیقت لوگوں کو ماننی پڑے گی کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کا خواب سب سے پہلے مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ اس ملک میں انگریز سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے 1600 عیسوی میں گجرات کے سورت میں قدم رکھتے ہیں۔ تجارت کے بہانے دھیرے دھیرے اس ملک پہ قابض ہونے لگے۔ سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر 1757 میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر کے بنگال کی حکومت نے اپنا قبضہ جمایا۔ پھر دھیرے دھیرے اڑیسہ، پھر اس کے بعد اڑیسہ کے بعد آپ کا یہ کلکتہ، پھر اس کے بعد یہ مدراس، اور اسی طریقے سے کرناٹک کا وہ جو شہر ٹیپو سلطان ہے، ٹیپو سلطان کو 1799 میں شکست دے کر کے انگریزوں نے دھیرے دھیرے پورے ملک پہ قبضہ جما لیا۔ اس وقت برادران وطن کو اس کی فکر بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے والوں نے جنہوں نے خواب دیکھا وہ ہمارے مسلم اسلاف تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی۔ ایک دو نام نہیں ہیں، ایک دو نہیں جن کا احاطہ کیا جائے، جن کو شمار کیا جائے۔ اگر ہم بیان کرنے پہ آئے تو یہ 200 سالہ جنگ آزادی کی تاریخ ہے۔ یہ 200 سالہ جنگ آزادی کی تاریخ ہے جسے مسلمانوں نے پوری طور پر کوشش اور جدوجہد کے بعد اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ بے شمار مسلمانوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما، بے شمار علماء کرام کو تخت دار پر نشانہ بنایا گیا، لیکن کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انگریز کے ظلم و تشدد سے کبھی بھی مسلمان گھبرائے نہیں۔ دلی کے اندر مسند درس پہ بیٹھ کر سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے ہم مسلمان ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ تحریک اٹھی جس تحریک کے بانی شہیدین ہیں، یعنی سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کی روح کو پھونک دیا، جنگ آزادی کی روح کو پھونک دیا۔ یہ آواز کیا تھی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا ایک نعرہ تھا۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک بام درا تھی۔ جس نے بھی سنا مدہوش ہو گیا، جس نے بھی سنا اس جنگ کی آزادی کی تحریک کا حصہ بن گیا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تحریک شہیدین میں حصہ لینے والے زیادہ سے زیادہ مسلم علماء کرام تھے، مسلمانوں کی اکثریت تھی، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان جس کا ہوا تھا وہ اس ملک میں مسلمانوں کا ہوا تھا۔ مسلمانوں سے اس ملک کی حکومت کو چھینا گیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوئی تھی تو مسلمانوں کو ہوئی تھی۔ اس لیے تحریک شہیدین نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور پھر کیا تھا؟ دیکھتے دیکھتے پورے ملک کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ دوستوں، ایک دو نام نہیں، افسوس کا مقام ہے کہ جن مسلمانوں نے 200 سال تک اس ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، تحریک کی آزادی کو بلند کیا ہے، تحریک آزادی کے لیے خواب دیکھے تھے، اسے بنے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، مگر افسوس کہ انہی کے ہم بعد میں آنے والے ان کے جانشین ہیں۔ کیسے برے جانشین ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو ان مجاہدین آزادی کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آزادی میں حصہ لینے والے
कुछ लोगों का नाम बताओ तो हमारे मुस्लिम बच्चों के जुबान पे जो नाम आते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। तुम्हें अपने मुस्लिम असलाफ के नाम याद क्यों नहीं? आज वैसे भी बातिल ताकतें पूरी तौर पर मुसलमानों से उनकी तारीख का हिस्सा छीनने और उसे नष्ट करने की कोशिश में है। पूरे तौर पर ये चाहते हैं, आज देखो निसाबी तालीम से, सिलेबस से मुसलमानों की तारीख को खोज करके फेंकने के दर पे हैं। पूरी तौर पर तारीख को मस्ख कर दिया गया, बदल दिया गया। नतीजा ये हुआ, आज हम ये मुसलमान के जो बच्चे हैं, सिर्फ इस मदरसे की बात नहीं है, हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस का ये हाल है कि जिस तरीके से गैरों ने तारीख को खत्म करना चाहा, तारीख को मिटाना चाहा, हम मुसलमानों ने इसका पूरा पूरा साथ दिया है। आप ये बताओ कि कौन से मदारिस में, कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें तारीख पढ़ाई जाती हो, जिसमें मुजाहिदीन आजादी के नाम गिनाए जाते हो, उनके नाम को याद रखने को कहा जाता है। याद रखो, जिस कौम ने अपनी तारीख को भुला दिया, तारीख उसे भी भुला देगी। इसीलिए किसी ने कहा था कि गाहे गाहे राज खानी किस्से पाई नरा, ताजा खाही दाश्तन गादहाए सीनारा। वक्फे वक्फे पर मुजाहिदीन किराम को याद करते रहना चाहिए, वरना भूल जाओगे तो फिर तारीख तुम्हें भी भुला देगी। आज उसी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, आज हम आखिरी सांसें गिन रहे हैं इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आज हमें साबित करने के लिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, अपने आप को न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए, क्योंकि हकीकत यह है, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हम जाने वाले हैं, और इसी मिट्टी से मोहब्बत का हम दम भी भरते हैं, और इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करेंगे। बड़ी जरखेज ये जमीन है, ये जमीन बड़ी जरखेज है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमारे बहाए गए खूनों का कोई भी हमें बदला न मिला, हमें उसकी वफा न मिली। और फैज अहमद फैज ने बहुत पहले कहा था कि तुझे कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़ वतन, तुझे कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करें। तुझे कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करें। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। तो दोस्तों, ये मुल्क की सरजमीन, हिंदुस्तान की सरजमीन हमारे अपने लोगों के बनाए गए इस खूबसूरत चमन का हम हिस्सा हैं, जिस मुल्क की सरजमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, तारीख को याद रखो, तारीख को भुला दोगे, तारीख हमें भी भुला देगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सिर्फ मदारिस के बच्चे नहीं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चों से आप पूछ लीजिए कि 10 मुजाहिदीन आजादी के नाम बता दो जो मुसलमान हो, उनकी जुबानें गुंग हो जाएंगी, उनकी जुबानें गुंग हो जाएंगी। बस नाम आते हैं तो इन लोगों के आते हैं जो बहुत बाद में आए हमारा साथ देने के लिए, जो बहुत बाद में आए। तो दोस्तों, हमने क्यों भुला दिया, हमने क्यों भुला दिया अपनी असलाफ की तारीख को? हमें गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात को पता करने की जरूरत है कि हमारे असलाफ कौन थे, किसने फांसी के फंदे को चुमा है, किसने कुर्बानियां पेश की हैं। याद रखो, 200 सालों में एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के शामली के मैदान तक, फिर उसके बाद चांदनी चौक से लेकर के मुरादाबाद से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिससे उलमाए किराम की लाशें न लटक रही हों। अंग्रेजों ने वो गदर मचाया था, अंग्रेजों ने वो सितम ढाया मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। अल्लाह की पनाह, उसे याद करके आज भी रूहें कांप जाती हैं। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम ढाए गए, ऐन ईद के दिन पटना मालूम है, वो बिहार वालों को फजीलत हासिल है। अजीमाबाद जिसका नाम आज पटना है, एक मोहल्ला है सादिकपुर। इन सादिकपुर के उलमाए किराम ने पूरी 1 सदी तक, 100 सालों तक इस जिहाद के झंडे को बुलंद किया। नस्लें दर नस्लें इस जिहाद की, इस जंगे आजादी की तहरीक में हिस्सा बनती रही, और जिसका एतराफ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटना के गांधी मैदान में किया था कि पूरे हिंदुस्तान के मुजाहिदों की जिहाद और उनकी कोशिशों को तराजू की एक तरफ रख दिया जाए और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को एक तरफ रख दिया जाए, तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां भारी पड़ जाएंगी।
होगी। आप भूल गए मौलाना जाफर थानेसरी कौन थे जिन्होंने काले पानी की सजा को काटा। पूरी किताब है काला पानी, आप पढ़िए तो सही, अपने असलाफ की तारीख को सुनिए तो सही, कैसी कैसी सजाएं दी गई। और इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में बहादुर शाह जफर को क्यों भूल जाते हो, जिनके 4 बेटों को बहादुर शाह जफर के सामने जिंदा ज़बह किया गया। बहादुर शाह जफर को इस मुल्क हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत का आखिरी चश्मो चिराग था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कैद करके रंगून के कैद खाने में भेज दिया, और जहां बहादुर शाह जफर ने बड़ी बेबसी के आलम में कहा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दीवार में, किसकी बनी है इस आलम में नापायदार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, तो गज़मी भी मिल न सकी कोई यार में। तो हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की थी जिसको आज हमने भुला दिया। नतीजा क्या हुआ? आज देख लो मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे गद्दारों को, अंग्रेज के चमचों को, गांधी के कातिलों को बहादुर बना के पेश किया जा रहा है। ये गोडसे कौन है जिसकी तस्वीरें आज लगाई जाती हैं? बावर कराया जाता है कि यही असल मुजाहिदीन आजादी थे। वीर सावरकर कौन था? वीर सावरकर कौन था? काले पानी के जेल से जिसने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। आज कहते हो कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियां पेश की, मुसलमानों की कुर्बानियों को भुला दिया गया। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, हर मदरसे के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम दीन पढ़ाते हैं, दुनिया पढ़ाते हैं, उसी में अपने मुसलमानों के जो गुजरी हुई बिखरी हुई दास्तानें हैं उनको याद करने के लिए, महफूज करने के लिए तारीख की किताब को बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये मुसलमान बच्चे जब निकल करके पढ़ करके बाहर जाएं तो इन्हें मालूम हो कि हम कौन हैं और हमारी कुर्बानियां क्या हैं। तो याद रखो, तारीख हमें ऐसे भुला देगी जैसे हम कभी थे ही नहीं। बहुत बातें हैं तारीख के, इस आज़ादी के लिए और इस आज़ादी की जंग के लिए बहुत बड़ी तारीख है जिसको हम यहाँ एक वक्त में बयान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम वो मुसलमान हैं जिसकी पूरी दास्तान, पूरी कहानी और पूरी कुर्बानियां इस मुल्क हिंदुस्तान के वसी व अरीज इलाके में बिखरी पड़ी है। किसी ने क्या खूब कहा था कि बल्कि अल्लामा इकबाल ही ने कहा था कि उड़ाने कुमरियों ने, तूतियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरसे ख्वा मेरी, उठाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। तो हम मुसलमान हैं कि यहाँ की मिट्टी खोदो तो मुसलमानों के खून की महक आएगी, जो कुर्बानियां उन्होंने पेश की थी। तो दोस्तों जरूरत इस बात की है, हम 15 अगस्त सिर्फ किसी फेस्टिवल या त्योहार की तरह बना करके लड्डू और मिठाइयाँ खा करके चले जाने का एक रिवाज न बना लें, बल्कि इस मौके पे जरूरत इस बात की है कि अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद किया जाए और उनके जैसा अपने अंदर अज़्म और हौसला पैदा किया जाए, ताकि इस मुल्क की मुसलमान मुखालिफ जो आंधियां चली हुई हैं उसमें डट करके उनका मुकाबला किया जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वो हौसला अता फरमाए, वो बुलंद हिम्मती अता फरमाए जो हमारे असलाफ के अंदर थी। अल्लाह ताला इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क हिंदुस्तान से नफरत की जो आंधियां चल रही हैं उसको यकसर मिटा दे रहे। हम मुसलमानों को, तमाम कौम, मजहब और मिल्लत के लोगों को आपस में मिल करके भाई भाई की तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अब मैं इसके बाद हमारे इस मुल्क, इस मदरसे के जो जिम्मेदार हैं